Morning students, today we will study the last two major components of elements of art. Color we will study in color its definition and various types of color and their effects. And before I proceed further with texture, I would give you a short reminder again. So far we have done elements. All elements are point, line, form, color, tone, texture and space. Now these elements of art are very vital. I have explained each and every component. If a detailed question comes on elements of art, you are not to mention too much detail about color. You are to give one definition and few types, name of the types of color. Today I have made one lecture on color because color in itself is a big question. So I'm covering it in a nicer way so that you can explain color when it comes on a big one. Answer is demanded for color. Let's start with color. Now color has very important role in human life. Everything can be seen only because of its color. Every surface has its own quality to reflect or absorb the light, less or more. Colors have great influence on us, creating certain mental status and stimulating physical and mental activity. It is of vital importance to keep in mind the psychological effect of color. कलर हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. आप देख सकते हो कि हमारे आसपास तरह तरह के रंगों की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और अगर आपने देखा होगा तो आपकी किताबों में भी तरह तरह की कलर्ड पिक्चर्स रहती हैं. दैट मेक्स योर बुक्स इंटरेस्टिंग. सो हर कलर का अपना एक सरफेस क्वालिटी होता है जिसमें एक तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करने में और रिफ्लेक्ट करने का क्वालिटी होता है. अब एक अगर सरफेस ब्राउन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें ये क्वालिटी है कि वो सारे कलर्स को, बाकी के 7 रंगों को एब्जॉर्ब कर पा रही है और एक को, दैट इज़ ब्राउन कलर, रिफ्लेक्ट कर पा रही है. तो कलर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अस. हमारे ऊपर रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है. इट क्रिएट्स मेंटल स्टेटस एंड स्टिमुलेटिंग फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. वी हैव सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. जैसे रेड को एक वॉर का कलर भी माना जा सकता है और प्यार का भी रंग माना जाता है. तो रंगों का हमारे ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है. लेट्स स्टडी व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कलर. नाउ color is a property possessed by an object to produce different sensations with the help of reflection of light. I repeat, color is a property possessed by an object to produce different sensations with the help of reflection of light. It is not an entity but a sensation conveyed to the mind through the medium of eyes. It is not an entity but a sensation conveyed to the mind through the medium of eyes. मतलब हमारी आँखें हमारे दिमाग तक रंगों की पहचान पहुँचाती हैं. In another simple language, color is absorption and reflection of light by the given surface. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई सरफेस हमें आधी ब्राउन और आधी ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब उस सरफेस में ये क्वालिटी है कि वो हाफ, उसका जो पार्ट है वो इस तरह का है कि जो ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है और बाकी सारे कलर्स को अपने में अब्जॉर्ब कर पा रहा है. और उसका जो अदर हाफ है जो हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसमें सारे ही कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे, कॉम्बिनेशन है वो, तो इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देता है. ठीक है, चलो नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आर अवेलेबल अराउंड अस.
Now, types of colors. On the basis of purity and mixture of colors, we can divide colors into several types. Here we will study only some important types of colors. आपको पता ही है रंगों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बट यहाँ पर हम आपको बेसिक कलर्स की वैरायटी बताएंगे जो एक आर्टिस्ट के लिए समझना ज़रूरी है. Now let's study primary colors. Primary colors are those which cannot be obtained by mixing two colors. They are pure and are found in nature as it is. Thus, these colors are also known as natural colors. I repeat, primary colors जो भी होते हैं वो obtain नहीं किए जा सकते दो colors को mix करके, ठीक है. और ये नेचर में एज इट इज़ अवेलेबल होते हैं और ये प्योर होते हैं एंड दे आर नोन एज नेचुरल कलर्स टू. और प्राइमरी कलर्स क्या हैं? ब्लू, रेड एंड येलो. देयर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, ब्लू, रेड एंड येलो. ग्रीन वी विल नॉट इंक्लूड इन प्राइमरी कलर्स. उसका रीज़न है क्योंकि अगर हम ब्लू एंड येलो को मिक्स करते हैं उससे ग्रीन कलर बन सकता है. दैट मीन्स इट बिकम्स अ सेकेंडरी कलर. Now what is secondary color? The color obtained by mixing two primary colors is called a secondary color. अब उसकी examples क्या हो सकती हैं? Red plus blue is equal to violet. Yellow plus blue is equal to green. Red plus yellow is equal to orange. That means secondary colors are also three in number. They are violet, green and orange. इसमें जो हमें उसने बताया है कि रेड और जो ब्लू है उसको प्लस करने से क्या बनेगा? वॉयलेट. और येलो प्लस ब्लू करने से क्या बनेगा? ग्रीन. रेड प्लस येलो क्या बनेगा? ऑरेंज. तो इन रियलिटी वी हैव थ्री प्राइमरी कलर्स एंड थ्री सेकेंडरी कलर्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज टर्शरी कलर्स. When we mix one primary and one secondary color, we get a tertiary color. अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे एक कलर व्हील दिया है जिससे आपको ये ज़्यादा बेटर वे से एक्सप्लेन हो पाएगा कि प्राइमरी कलर्स कैसे हैं और क्या क्या मिक्स करने पर क्या क्या बनता है, ठीक है, और कितने सेकेंडरी कितने टर्शरी कलर्स हैं. अब नाउ वॉयलेट प्लस ब्लू इज़ इक्वल टू इंडिगो, ऑरेंज प्लस रेड इज़ सैफरन, येलो प्लस ऑरेंज इज गोल्डन येलो और यू कैन से डीप येलो. जब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिक्स करते हैं तो वी गेट अ टर्शरी कलर, राइट. अर्लियर व्हाट वाज द प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर वाज इट इज अवेलेबल इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी मिक्सड, it cannot be obtained by mixing two colors. And what about secondary color? Secondary color is when we mix two primary colors a secondary color is formed. Now number 3 पर आता है tertiary color. Tertiary color क्या है? When we mix one primary and one secondary color we get a tertiary color. Now next color is analogous colors. These are the colors of one category, or we can say same type of the colors such as yellow, orange, lemon yellow, cadmium yellow, Naples yellow, yellow ochre, etc. अब जो कलर्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं यानी कि वो एक ही कैटेगरी से निकले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनालॉगस कलर्स. और जैसे इसने एग्जाम्पल दिए येलो में कितनी तरह की वैरायटी हमारे पास? येलो, ऑरेंज, लेमन येलो, कैडमियम येलो, नेपल्स येलो एंड येलो ऑकर. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री और ऑपोजिट कलर्स. जैसे नाम से क्लियर है, the secondary color obtained by mixing two primary color is also opposite to the third one. I repeat, जब हम सेकेंडरी कलर ऑब्टेन करते हैं दो प्राइमरी कलर मिक्स करके, वो जो दो प्राइमरी कलर के मिक्स करके वो जो कलर बनता है वो थर्ड को कॉम्प्लीमेंट्री होता है. थर्ड माने थर्ड प्राइमरी कलर को. लेट अस स्टडी दिस इन अ बेटर वे.
I'll repeat. The secondary color obtained by mixing two primary color is also opposite और complementary to the third. अब जैसे देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने दो प्राइमरी कलर्स उठाए हैं, एक है ब्लू, दूसरा है येलो. इनको प्लस करने से क्या कलर फ्रेम होगा, ग्रीन, और विच इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द थर्ड वन प्राइमरी कलर, दैट इज नोन एज रेड. ऐसे ही जब आप रेड प्लस येलो करोगे तो वो ऑरेंज कलर बनेगा. और थर्ड आप देखिए रेड प्लस, हमारे पास कितने प्राइमरी कलर्स हैं, तीन ना. रेड और येलो तो निकल गए, अब कौन सा बचा, ब्लू. तो हम क्या कहेंगे इसको, ऑरेंज विच इज ऑपोजिट टू ब्लू. ब्लू प्लस रेड इज इक्वल टू वायलेट. ब्लू और रेड तो हमने यूज कर लिए, तो अब कौन सा कलर बचा, येलो. सो वी विल राइट इट विच इज ऑपोजिट टू येलो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. Hot colors. The colors which give the effect of heat or have maximum wavelength are called hot colors. There are two hot colors. First one is red, another one is yellow. Next is cold colors. The colors which give the effect of coolness or have minimum wavelength are called cold colors. These are two, that is blue and green. देखिए जो कलर्स का मैक्सिमम वेवलेंथ है और जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हॉट कलर्स बोला जाता है. वो दो हैं जिनको रेड एंड येलो में कैटेगराइज किया गया है. जो कोल्ड कलर्स हैं वो एक ठंडापन का आभास देते हैं, जो ठंडक देते हैं. अब वो दो हैं, वो है एक ब्लू एंड ग्रीन. Okay, now we will study neutral colors. The colors which are neither strong or bright nor have any hot or cold effect are called neutral colors. These are black, white and shades of brown and grey. जो कलर ना अपने आप में बहुत ब्राइट होते हैं, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना उनका हॉट इफेक्ट होता है, ना ही उनका कोई कोल्ड इफेक्ट होता है, उनको न्यूट्रल रंग बताया जाता है. अब इनमें क्या क्या कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक आता है, वाइट आता है, ब्राउन आता है और ग्रे के कुछ एक शेड्स आते हैं. नाउ लेट अस स्टडी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कलर. इट इज अ ह्यू. इट इज़ अ ट्रू कलर. फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड वॉयलेट आर ह्यूज. अब जो कलर है अपने आप में उसके थ्री पार्ट्स में वो बटा हुआ है. ह्यू क्या होता है, जो कलर बेसिक फॉर्म में अवेलेबल है, हमें जिस फॉर्म में वो अवेलेबल है, जैसे वो रेड कलर है या येलो कलर है. ओरिजिनल पिगमेंट इज नोन एज ह्यू. Value. It is a degree of lightness or darkness of a color, or in other words, tints and tones of a color. Adding white to a color lightens it and it creates a tint. Adding black to a color creates a tone. अब वैल्यू क्या होती है, हम जिस अमाउंट में कलर की डार्कनेस या लाइटनेस देखते हैं उसको वैल्यू कहा जाता है. और इन अदर वर्ड्स ये टिंट्स एंड टोन ऑफ द कलर होती हैं. अब क्या है टिंट, जब हम किसी कलर में वाइट ऐड करते हैं तो कलर लाइट हो जाता है और उसको टिंट बोला जाता है. जब हम उसी कलर को डार्क करने के लिए उसमें ब्लैक ऐड करते हैं तो उसको टोन बोला जाता है. लेट अस स्टडी विद एग्जांपल. रेड प्लस वाइट इज पिंक. ये बन गया है टिंट. पिंक है रेड का टिंट. ओके. रेड प्लस ब्लैक इज मरून. ये बन गया है टोन. इसका मतलब मरून जो है रेड कलर का टोन है, पिंक जो है रेड का टिंट है. नाउ इंटेंसिटी. इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कलर और ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ अ कलर. फॉर एग्जाम्पल magenta is a bright color whereas olive green is a dull color. As I'm not there in the class, I can't show you the colors, but you can check out the colors in your color kit. Magenta एक बहुत तीखा bright color है, but olive green एक dull color है. All colors are beautiful depending on personal taste. If not used wisely or combined well, color can cause art to look too gaudy or very dull. Harmony is created when hues, values and intensities are combined in a pleasing way.
अब देखिए कितने ही अच्छे से ढंग से ये एक्सप्लेन हो गया है। अगर हम कलर्स को सिर्फ ब्यूटीफुल समझते हैं तो ऐसा नहीं, हमेशा कलर को अगर वाइजली नहीं यूज़ किया जा सके तो वो किसी भी आर्ट की चीज़ को डल या गॉडी दिखा सकते हैं। प्रॉपर हार्मनी लाना विद हेल्प ऑफ ह्यूज, वैल्यू एंड इंटेंसिटी, तभी एक आर्ट वर्क एक प्लीजिंग वर्क बनता है। I hope that you have understood now color in a better way. Now we will study different effects of colors. All colors have a psychological effect which depends on our feelings. Colors are used to tell the qualities and feelings of a person. As we know, some colors have hot effect, some have cold effect, and some are neutral. At every place, the color does not have the same effect. अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे जो माइंड पर है कलर्स का अपना एक इफ़ेक्ट होता है। तो कलर्स का जो ये इफ़ेक्ट है हमारी फीलिंग्स पर भी डिपेंड करता है। कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं एक इंसान की क्वालिटीज़ और फीलिंग्स भी। As we know that some colors have hot effect and some have cold and some are neutral. At every place the color does not have the same effect. Some important colors have the following effects. Let us study. Red. It shows excitement, festivity, revolution, patriotism, war, danger, anarchy, anger, heat, fire and love. अब देखिए, एक कलर है और वो कितने अपोजिट इमोशंस भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि उसको आप जिस हिसाब से यूज़ करोगे वो वैसे ही इमोशंस रिफ्लेक्ट करेगा। येलो, इट शोज चेयरफुलनेस, गेटी, सनशाइन, वार्मथ, लाइट, ब्रिलियंस एंड ग्लोइंग विजडम। हालो, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत बड़े जो सेंट्स होते हैं या फिर हमारे देवी देवता हैं, उनके बैक साइड पर एक हॉलो दिखाया जाता है जिससे हम उनको एक डिवाइन फिगर शो करते हैं। सो येलो हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. इट इज़ कंसिडर्ड द color of wisdom too and brilliance too. Blue, it shows coolness, royalty, truth, pleasure, vastness, sadness, distance, mental depression, constancy and stability. ब्लू को जैसे मैंने आपको बताया था एक कूल कलर भी माना जाता है, तो ये कूलनेस शो करता है, रॉयल्टी भी और ट्रूथ भी। और हमारे नेशनल फ्लैग में भी ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और हम ये फील करते हैं कि जब अगर आपके घर में ब्लू कलर है आपके रूम में तो वो आपको एक कूल एटमॉस्फेयर देता है। हाँ, अगर कोई रेड कलर करवाता है वो थोड़ी देर के लिए तो अपील कर सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। रीज़न, क्योंकि रेड एक बहुत हॉट एंड ब्राइट कलर है और इट मे अफेक्ट योर बेसिक नेचर टू. इट मे एग्रीवेट योर एंगर और बूस्ट अप योर ईगो टू. Let us study few more effects of the different colors. Green. It shows relaxation, softness, pleasantness, spring, festivity, fertility, growth, abundance, jealousy and weakness. Now orange. It shows knowledge, bravery, heat, stimulation and spirituality. अगर आपने देखा हो तो भगवा रंग के कपड़े पहने जाते हैं सेंट्स के द्वारा. That reflects spirituality. Violet, it shows royalty, dignity, mystery, death, cheerfulness and etc. etc. अब वॉयलेट कलर है जो हम अगर लैंडस्केप बना रहे हो तो हम इसको बहुत दूर की चीज़ें दिखाने के लिए मिस्टी सा इफेक्ट दिखाने के लिए भी वॉयलेट कलर यूज़ करते हैं. वाइट, इट शोज पीस, यूनिटी, प्योरिटी, लाइट etc. ब्लैक, इट शोज डिप्रेशन, डार्कनेस, फियर, ईगो, evil and sadness. With this effect of colors we have finished our one topic, color. Color in itself is a big topic. It may get a big question over in exam too. So मैंने इसको इसीलिए डिटेल में अलग से करवाया है. अदरवाइज़ अगर ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में ही अगर आपने लिखना हो तो इतनी डिटेल में नहीं लिखना है और इसको
सिर्फ इसका डेफिनेशन और उसकी कुछ एक काइंड्स लिख देनी है। जैसे इसकी बेसिक काइंड्स हैं वो है प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स और एनालॉगस कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, तो इसको इतने डिटेल में नहीं लिखेंगे तब जब ये हमें एक शॉर्ट फॉर्म में आता है। यहाँ ये एक पार्ट की वजह से आता है, अगर एलिमेंट्स में ही लिखना है। अपने आप में ये इसके ऊपर एक फुल फ्लेश बिग क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी विल स्टडी टेक्सचर, दैट इज द लास्ट वन एलिमेंट ऑफ आर्ट। टेक्सचर इज द सरफेस क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स either visual or by touching. It is the way of the surface of an object actually feels. देखिए इसकी डेफिनेशन से ये क्लियर है कि जैसी हमें वो सरफेस फील होती है वो उस के टेक्सचर की क्वालिटी होती है। कुछ एक सरफेसेस पे सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया गया होता है। इल्यूजन मतलब वो सिर्फ पेंट में, ड्राइंग में शो किया जाता है कि ये रफ़ है, बट टच करने पे रफ़ नहीं होती। बट कुछ एक जगह जो होती है वो रफ़ होती है, वो एक्चुअली ये उसका नेचुरल टेक्सचर होता है। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंक्लूड्स सैंड पेपर, कॉटन बॉल्स, ट्री बार्क एंड फॉलोइंग आर फ्यू नेचुरल ones. In a painting, texture is shown by artist's skill and expertise. With the help of color and strokes, the texture may look rough or fizzy, gritty, but cannot actually be felt. अब bricks जो हैं wood है, rough है, fizzy होती हैं, gritty होती हैं, but ये फील नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ने उसकी लुक ही दी है. द सी calm or animated. The texture of leaves and its bark, smooth fall of a drape in a still life are all mastered by drawing the details of a टेक्सचर. देखो जब सी दिखाया जाता है और उसमें रफल्ड उसकी वो दिखाई जाती हैं लहरें, तो वो क्या है, वो भी टेक्सचर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है. अदरवाइज़ वो हमें रफ़ नहीं दिख रही, हमें वो रफ़ फील नहीं हो सकती, हम फील करके उसको फील नहीं कर सकते, बट इट इज़ गिवन अ जस्ट इम्प्रेशन ऑफ द रफनेस. एंड सेम वे अ bark of a tree is created with rough texture. It may not be felt while touching, but on seeing you can see the texture. That is actually the mastery of an artist. With this last point, texture, our one topic elements of art is finished. Our next lecture will be on the principles of art, and principles of art and elements of art and 6 limbs of art are part of basically fundamentals of art. I hope that you have understood each and everything. Thank you. Have a nice day.